Good morning, students. Welcome to Science Video Class 8, which is our part 17. Student, in previous video we are discussing about crop production and management, and we studied some basic practice that how can we produce a crop. And in last our part 15 or 16 video, we are discussing some last step in the crop production, which is harvesting, threshing and winnowing. And first we revise that again, then we will move on our new topic. So student, हम अपन लास्ट जो हमारे टॉपिक था वो था हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग, कि किस तरीके से जो crop है when it get fully matured, and then how we separate them by one through which a fully nutritive species or a substance is came into our kitchen. So जिसमें फर्स्ट था हार्वेस्टिंग. So harvesting में student again I am telling you that when the fully crop matured and it's separated from the field, so it is known as harvesting. मतलब जब एक fully matured crop जब field से removed होती है, then it is a harvesting. And threshing is what? When जो ripe grains हैं, जब when separating of ripe grains are done, so it is threshing. Next is winnowing, when the grains which are separated from the chaff, so it is known as winnowing, which you can see in the picture. And I already told you by making some diagram also. Next we are discussing about storage, that how we store those grains. मतलब अब हम जब एक एक स्टेप को फॉलो करा हमने, हाउ वी ग्रो अ crop, and after removing it, so we have to store in a particular container, in a particular room, through which neither any environmental factor nor any insect or disease attack it. स्टोरेज भी हमें बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए, कि जिसकी वजह से कोई भी इंसेक्ट या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर. स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर मीन्स लाइक जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेन, ये भी हमारी जो ग्रेन्स हैं उनको इफ़ेक्ट ना करें. एंड हमने स्टोरेज में भी काफ़ी कुछ कवर करा था अपनी लास्ट वीडियो में, जैसे कि जो फ्रेशली हार्वेस्टेड फूड ग्रेन्स है वो मॉइस्ट होती हैं, मॉइस्ट जिसमें नमी होती है, क्योंकि हमारे जितने भी ग्रेन्स हैं they all are moist in nature. So first we have to kept in the sunlight, through which the moisture get reduced, and then we put it into a container, in a suitable container like a jute bag, silos and some granaries. You can easily see in both the pictures. Next हमने नेक्स्ट न्यू मेथड देखा था, लाइक ड्राई नीम लीव्स. Due to several properties of neem, we can kept them in, or like metallic drum, jute bags also. हमने ड्राई नीम में हम क्यों रखते हैं स्टूडेंट्स? बिकॉज एनी इंसेक्ट और एनी माइक्रोब्स कैन नॉट अफेक्ट दैट ग्रेन विद द हेल्प ऑफ और बाय पुटिंग इन द नीम लीव्स. और स्टूडेंट, जो हमने 2 टाइप के स्टोरेज देखे थे, फर्स्ट इज़ ड्राई स्टोरेज, सेकेंड इज़ कोल्ड स्टोरेज. ड्राई स्टोरेज में क्या था, जिसमें ग्रेन्स रखे जाते हैं, लाइक जितने भी हमारी दालें या फिर राइस और वीट
ये सब ड्राई स्टोरेज, क्योंकि बिकॉज दे कंटेन सम मॉइस्चर। जब ये न्यूली कट होती हैं या फिर when they freshly harvested, so they kept in dry harvest. But cold storage is what, in which the fruits and vegetables are stored. वो एरिया जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल स्टोर होते हैं, दे आर नोन एज द कोल्ड. बट जहाँ पे दालें, राइस, वीट स्टोर होते हैं, दे आर नोन एज द ड्राई. बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट जो राइस और दालें होती हैं, दे नीड ड्राई एरिया बिकॉज दे हैविंग सम मॉइस्चर. नेक्स्ट, there are mainly two factors that damage food grains. यहाँ मेनली जो टू फैक्टर्स हैं जो हमारी जो वीट है, जो ग्रेन्स हैं, दे गेट इफेक्टेड. फर्स्ट इज बायोटिक, सेकेंड इज अबायोटिक. बायो you can easily resemble with bio means living, abio means non living. so biotic factor स्टूडेंट कौन कौन से होंगे, क्योंकि आप easily resemble कर सकते हो बायो वर्ड से, तो जनरली बायो मीन्स इंसेक्ट्स होंगे, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे. देन द बायोटिक फैक्टर सच एज रैट, इंसेक्ट, वर्म, बर्ड्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इनके थ्रू अगर कोई भी जो फूड है, ग्रेन्स हैं, वेजिटेबल हैं, गेट इफेक्टेड, सो दे आर नोन एज द बायोटिक फैक्टर. एंड अबायोटिक फैक्टर लाइक टेम्परेचर, मॉइस्चर एक्सेट्रा. और डिफेक्टिव कंटेनर इज़ व्हाट, लाइक अगर कोई जैसे हमारा मेटालिक कंटेनर है, उसमें होल हो रहा है, then a rat can easily go in or out through which it eat grains. कोई भी rodent animals है, rodent animals which having teeth like squirrel और rat. तो कोई भी जिस मेटालिक, अगर किसी भी मेटालिक ड्रम में डिफेक्ट होगा, कोई ख़राब होगा, either it is a jute bag also, तो कोई भी इंसेक्ट और कोई भी एनिमल उसमें ईजीली इन और आउट हो सकता है और हमारी क्रॉप को डैमेज कर सकता है. सो इट इज़ अ बायोटिक फैक्टर. लाइक टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, टेम्परेचर कम है, तो वो भी इफ़ेक्ट करता है. लाइक जैसे रेन. सो they affect stored grains like fungus, other microbe grow on when the grains have having some high moisture content. अगर किसी ज़्यादा हम नमी वाले एरिया में किसी क्रॉप को रखते हैं, देन हमारी जो क्रॉप है वो भी ज़्यादा मॉइस्चर से इट विल इफेक्टिव. सो इट इज़ अबाउट द स्टोरेज. स्टूडेंट, इन नेक्स्ट वीडियो वी कवर अवर टॉपिक फूड फ्रॉम एनिमल्स. कि अभी हमने पढ़ा था कि क्रॉप से हमें फूड ऑब्टेन होता है, इट मीन्स प्लांट से ऑब्टेन होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एनिमल से कौन कौन से फूड ऑब्टेन होते हैं. इट इज़ वेरी शॉर्ट टॉपिक और वेरी इजी.